Sit down, please. I hope I'm audible. Last row audible. This side audible. Okay. So we were talking about yesterday about the various phenomena and the events that have happened. So today what are we going to talk about? मेरे वाला पेन ड्राइव नहीं लगा है आज. We talked about the seasonality of the rainfall. Yes. And then we talked about the various global teleconnections which are happening. So good afternoon to all 9 students. I hope I'm audible. Kindly confirm the audio and the video. So any questions on, we were talking about El Nino, La Nina, और क्या किया, IOD और MJO, यही है. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं which generally should not concern you. So will climate change, global warming, increase rainfall or decrease rainfall? Increase, decrease, or both? Okay. So one question is about global warming. Second question is Arctic. Have you heard that Arctic ice is melting? Yes. What will it will have an impact on global warming also. So how will Arctic ice melting impact global warming? Island countries will get submerged. Yeah, ocean sea level rise. So it's the same thing. What else? The planet's heat budget, which has a significant part, which is called the albedo. Albedo will increase or reduce? Reduce. So albedo is the reflective capacity, and ice reflects more than water. So if ice melts, we will have more water, and as a result more absorption will happen. So albedo will decrease. Yes. So can I say decrease in albedo will further cause increase in the temperature? तो global warming बढ़ जाएगी. ठीक है. So tell me one thing. If you are talking about Arctic melt, will it impact India's cyclones? Will it impact rainfall in India? Yes, no, possible. Possible how? How possible? So online students also making a guess. We're talking about the melting of Arctic ice. Will it impact the rainfall Indian monsoon? So El Nino impacts, La Nina impacts, IOD impacts, and MJO impacts. तो ये करेगा कि नहीं करेगा? तो कैसे करेगा? हम तो आर्कटिक की बात कर रहे हैं. आर्कटिक मेल्ट की बात हो रही, अंटार्कटिक की नहीं कर रहा. आई डिड नॉट से पोलर मेल्ट. I said Arctic melting, will it have impact on Indian rainfall? How and why? How and why? How and why? So yesterday class is not showing in recorded. Maybe after 24 hours it shows, so maybe it will show after a gap. Please don't worry on that. अभी बताओ जल्दी से, करेगा या नहीं करेगा impact? Or if here, how and why? Okay, so let me start the question with
or the class with how and why. What will be the impact? How and why? Do we get that? So cold air comes to high pressure to low pressure. भानु अगर ऐसा करोगे तो यूपीएससी आई होप तुम 25 नहीं दे रहे हो. बात हो रही आर्कटिक की. आर्कटिक का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या इंडियन मॉनसून पे कैसे होगा? ये कह रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर, बीच में साइबेरिया आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा भाई. तो भानु ऐसे वाला गेस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. यस सर, बिकॉज ऑल ग्लोबल फिनोमिना आर रिलेटेड. ओके, अगर ये लिख दें तो गड़बड़ है, सिर्फ यही लिखने से थोड़ी हो जाएगा. So first of all, I want everyone who is preparing for this examination, how and why is a question that has gone in our mind, and I want you to go beyond it. This conversation I'm having with you very clearly, keeping in mind that you're going to appear for prelims 2025. Are you going to appear for prelims 2025? How will I clear? Big problem. Why am I not able to remember everything? Why my score is going down? Yes or no? ऐसे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सब सवाल आपको एग्जाम में जाने से रोक रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, डे बिफोर द एग्जामिनेशन कईयों को ख्याल आएगा कल एग्जाम नहीं देना है. It's a very, very normal thing. Many people will decide against giving the examination one night before. नहीं यार, and you will also explain why and how. So I want to tell you, when I explained you El Nino, La Nina, did you see how it was connected to the Indian monsoon? So you were happy. सर ने आज बता दिया, आज तक नहीं पता था, मुझे पता चल गया. True or not? Then I said, you know, despite an El Nino, an IOD can cause a better rainfall. ये भी आपको समझ में आ गया था. And if ENSO and IOD are very poor, still MJO is passing, तो वो भी हमें मानसून दे देगा, ज्यादा पानी देगा. You were very happy with it. So कल आपका how और why बहुत satisfy हुआ. You felt confident. Today I am saying Atlantic Ocean में जो ice melt हो रहा है, because of that the temperature of Arabian Sea is increasing. And if the temperature of Arabian Sea is increasing, more evaporation, more water vapor is there. So that is going to cause more rainfall. And the intensity and the frequency of the cyclones is going to increase. अब उसका how and why हमें पता नहीं है. But we have observed it. What are we doing? Data तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? True or not? So I'm saying science, though its aim is to answer why and how, there are times when science is operating when it does not have answers. Yes or no? So science goes with what is visible, what is empirical. Do we get that? So again I'm saying, you have been preparing for this examination, yes or no? Empirically you have been with your books. Empirically you have tested yourself. Empirically you've answered your teacher's questions. Empirically you've talked to each other and grown in confidence. Why should you not give the examination? How and why के बहुत सारी चीजें होंगी. Today's generation has started loving how and why. I am saying reality is what, how and why. If you do not have how and why, that does not mean what cannot happen. Yes or no? True? So imagine, did we from very beginning, did human beings knew the way in which human reproduction happens? Did they know it? But still babies were taking birth or not? True or not? Do we know why death happens? Can we stop death? It happens. Why and how में हम बोलेंगे ये fail हो गया, वो fail हो गया, सब कुछ हो गया. I am saying this is the time. We are in the month of March now.
Please give your whys and hows rest. What is important? What did I do in the last 1 year? What have I already read? I need to revise that. What is important for the examination? जो होगा देखा जाएगा. प्रीलिम सेंट्रिक हो जाओ, प्रीलिम सेंट्रिक हो जाओ. अगर आपके ऑप्शनल भी चल रहे हैं तो उसमें वही टॉपिक्स करो जो आपके प्रीलिम्स के रिलेटेड है. हिस्ट्री वाले भी प्रीलिम्स से रिलेटेड है, पॉलिटी में भी. अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है तो छोड़ सकते हो, अभी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए. ठीक है. सर एट द एंड ऑफ द क्लास कैन यू प्लीज गाइड मी अबाउट करंट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. बेटा इंडिविजुअल क्लास चल नहीं रही है, ऐसा होता तो बात ही अलग थी, कोशिश तो पूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं. ठीक है. सो वट एवर यू हैव डन प्लीज डू दैट. एक बड़ी चीज यहां पर यह है मेमोराइजेशन. प्लीज 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 स्टार्ट मेमोराइजिंग. आखिर के लिए मत छोड़ो. Everyone who's listening to me and who wants to clear this examination, please start memorizing. Get that? मैंने देखा बहुत से लोग हिंदी के लिए भी क्लास में समय दे रहे हैं. हिंदी कंपलसरी है, 10th क्लास की हिंदी आएगी. 10th क्लास की हिंदी है वो. 10th क्लास का जो आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है एग्जैक्टली वही आएगा. और उसमें इफ यू आर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट और तुम्हें टेंशन हो रही है कि मैं पास कैसे होऊंगा, ठीक है, तो यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑस्ट्रिच. खतरा यहां है और देख वहां रहे हो. डू वी गेट दैट? आई हैव फाउंड सो मेनी पीपल हु आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन. दे टोल्ड मी मैं तो फेल ही इसलिए होता हूं, कंपलसरी पास नहीं होता मेरा. तो do not make things which are easy as things which are difficult. हमने भी वो क्लासेस एक साथ कर दी कि आपको उसकी झलक मिल जाए. आई एम श्योर आपने उसके क्वेश्चंस देख लिए होंगे. दे आर वेरी वेरी इजी. सर लेकिन सर उसकी समरी कैसे लिखूंगा? सर उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी. पहले एनवायरनमेंट रट ले, उसका मौका ही नहीं मिलेगा. ट्रू और नॉट? सर लेकिन एक निबंध लिखे जमाना हो गया. अरे प्रेम पत्र लिखे भी जमाना हो गया. नॉट द राइट टाइम. लिखेंगे लव लेटर, वो होना था 14 को कर देते पिछले बार, वो मिस हो गया, अब नेक्स्ट डेट पे करेंगे. ट्रू और नॉट? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस. सब प्लान बी होना चाहिए क्या? हाँ, तो प्लान बी हिंदी नहीं होना चाहिए. प्लान बी तब भी यूपीएससी होना चाहिए. ये सुनो सर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं. हाँ हाँ, ऐसा ही होता है प्यार में, थोड़ा ऐसा ही महसूस होता है. अपनी सुध बुध खो जाते. प्यार बढ़ाओ फॉर द एग्जाम, यू नो, गो फॉर दैट. एकदम मीरा टाइप भक्ति बढ़ा दो. दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम. टोटली इमर्स योरसेल्फ इनटू दिस. टोटली इमर्स. जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भूल रहा है, जब ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो पॉलिटी भूल रहा है, याद नहीं आ रहा है. परफेक्टली ओके. बट अगर इस समय हिंदी साहित्य खोल लिया, निबंध लिख के प्रैक्टिस करनी है सर आज ही, अब गड़बड़ है. अब गड़बड़ है. इट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट. आफ्टर प्रीलिम्स लिख लेना, वो जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स. जिस दिन प्रीलिम्स हो शाम को निबंध लिखना, कोई दिक्कत नहीं. समरी लिखना है, जो भी करना है, डू दैट. नहीं सर एक बार मुझे सर्वनाम पढ़ने हैं और संज्ञा भी अगर समझ आ गई, अभी ना नाम होगा ना संज्ञा बचेगी. लेट्स गेट टू द रियल थिंग्स. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. डू वी गेट दैट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी चीजों को याद करना प्लीज शुरू करिए. जिन लोगों ने याद करना नवंबर दिसंबर से, जब से मैं कह रहा हूं, किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ रहा होगा. एंड आई वांट टू टेल यू दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन यू वुड बी फार मोर knowledgeable and in control of things than anyone else, including your teachers. हम लोग तो एक ही विषय पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, एंड एक ही सब्जेक्ट, छोटा सा टॉपिक ही तो पढ़ते हैं. आज क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉट पढ़ेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट आपको सब आएगा उस दिन. एंड अगेन सेइंग, there will be many reasons why you should fail, how you should fail, but still you will pass. और कई बार आपको गलती नहीं करनी पड़ेगी, पड़ोसी गलती कर देगा, वो टेंशन में जाएगा. दिस इज अ बैटल ऑफ नर्व्स. यू विल सी क्लास में फिर अटेंडेंस भी कम होने लगती है, घबराहट होने लगती है, एंड ऑल दोस थिंग्स. घबराहट का एक ही तरीका है, whenever you are feeling afraid, it's not the time to reach out to too many people. 1-2 लोग जो आपके कोर ग्रुप में हैं, योर फैमिली मेंबर और अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ रीच आउट करिए, वरना टेस्ट योरसेल्फ. जब डर लगे टेस्ट,
जब डर लगे टेस्ट, और किस में टेस्ट करेंगे? जो सबसे आपका स्ट्रेंथ एरिया हो, दैट विल ब्रिंग यू बैक, दैट इज ब्रिंग यू बैक। ज्योग्राफी है स्ट्रेंथ, ज्योग्राफी में करो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में करो। सर मेरा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बात नहीं, बनाओ। ट्रू और नॉट? आई एम सेइंग इस फाइनल में भी, इस फाइनल में भी बी इट न्यूजीलैंड और बी इट इंडिया, उनके ऑलराउंडर्स ने अच्छा किया कि नहीं किया? So if you say I don't have a strength, I'm neither a batter nor a bowler, if you are an all-rounder आप पास हो जाओगे। ऑलराउंडर तो स्ट्रेंथ सभी में, जिसमें भी आपने डाला है करिए ना उसको, बट नॉट नोइंग थिंग्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। डू वी गेट दैट? सो विद दिस मैसेज आई वांट टू स्टार्ट द क्लास एंड 2 दिन की छुट्टी भी आ रही है, सो आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स राइट इन द बिगिनिंग। एंजॉय करिए फेस्टिवल भी, एंड लेट दिस ईयर बी योर सक्सेस फेस्टिवल। Get that? Do not be caught on how and why. How and why क्या है? लेफ्ट ब्रेन है, ये हमें बचपन से दिया हुआ है। पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ भी बन सकता है आज की दुनिया में, तो नेता तो बन ही सकता है, बढ़िया नेता बनेगा। ये सुनो, जो मर्जी बनेगा, ऐसा कभी कहते नहीं थे पढ़ेगा लिखेगा नहीं नेता बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसे बोलेगा ही नहीं। क्या बोलेगा? घास छिलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि that's not the idea. वो why and how वाला है। We've seen people with limited academic success have done great in life otherwise also. Yes sir? So I'm saying जो भी आपने बुक्स में पढ़ा है, अगर आपने समझ के साथ पढ़ा है, please memorize it. Everyone is pressurized at this time and I want to tell you people who are giving the interviews वो भी pressurized है। इंटरव्यू के बाद फिर से प्रीलिम्स लिखना होगा। They know it is as good as a zero game जहां से स्टार्ट करना होता है। So for a fresher, there is nothing to lose. Please do that. Yes or no? So yesterday class has not been uploaded. जहां तक मुझे पता है वो मेरे ख्याल से 24 hours के बाद अपलोड होती है। It will be uploaded. Please don't worry. ठीक है? And don't miss the classes. They are linked. Sir, too many distractions at home. ये आपको देखना है। एक तो टेस्ट कभी कभी लो फील करवा देती है, जैसे क्वेश्चंस होता है, और क्वेश्चन ठीक होते हैं। इट्स ओके, दिस थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग, दिस थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग। इंडिया में स्टार्टिंग में जब रोहित खेल रहा था ऐसा लग रहा था हम ही अपुनिची गॉड है। यस सर? जब वो चला गया तो ये रन क्यों नहीं बना रहे हैं? ट्रू और नॉट? सो दैट विल हैपन, दीज थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग। सर डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, आते हैं, हमारे भी, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं, फादर की हेल्थ अच्छी नहीं है, और भी कुछ हो सकता है, दैट्स गोइंग टू बी देयर और नॉट। सो वी आर गोइंग टू फेस दैट, दैट इज गोइंग टू हैपन। Not getting satisfactory marks, that's okay Anant, I don't want you to be satisfied right now. Whatever marks you are getting उसको बढ़ाते जाओ, and on the day of the examination what we will get will be satisfactory. Do we get that? So आप उसको बढ़ाइए। So I am happy that you are not satisfied with what marks you are getting. Please push them. Please push them. कल किसी ने यहाँ पर लिखा, imagine कल किसी ने यहाँ पर लिखा, I just want to tell you the problem with the tests. I told you that because of El Nino, there is low rainfall in India and Sahel experiences drought. True? If you remember that question, I don't know the name of the student, he wrote, sir, अभी टेस्ट में आया था, because of El Nino, Horn of Africa में heavy rain हुआ. True or not? So what did I say? Horn of Africa is not Sahel region. That's a different climatic zone that we are talking about. वो ईस्ट कोस्ट में आता है, साहेल बीच का कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, that's a different thing that we are talking about. But I want to tell the reality to all of you. There is a person who has joined a coaching institute as a content developer, and he's told make a question. He's told make a question for the test series people and make a current affairs related question. So he picks up a report. The report tells the impact of El Nino of 2024 on rainfall in Africa, and there is a line over there that because of this in the Arabian Sea, Horn of Africa experienced rainfall. So वो क्या बनाता है, वो वही स्टेटमेंट को आपके लिए डाल देता है, which of the following statement is correct. So that person, whether he is competent to make such a question or not, but उसने अपनी तरफ से एक फैक्चुअल डाल दिया कि नहीं डाल दिया. Now what was the report on? Report was impact of El Nino on African East Coast in 2024. Was it
the impact of global teleconnections on Indian monsoon? No. Can I say this report has a very narrow mandate, whereas the rainfall in the Arabian Sea, in the Indian Ocean has multiple factors? So is the report wrong? No, report is not wrong. Report is talking about a particular dimension. So the paper setter ऐसे sentences ले आएगा. क्या आप उस समय थोड़े समझदार होगे कि नहीं होगे? Will it make a difference or not? So that's what we are talking about. So if it happens कि आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं and it might be that question setter ने वैसा क्वेश्चन सेट किया हो. सर यूपीएससी कर देगी तब मेरा क्या होगा? देखो इतने तो तुम वो नहीं चल रहे हो बदनसीब. अगर चल रहे हो तो इतना मतलब देश में रोज तीज त्योहार होता है, अब तक तो कुंभ मेला नहा लेना चाहिए था. तो अपने पाप मिटाओ, मंदिर मंदिर जाओ, रोज जाया करो. जब भी लो फील कर रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहां मौका मिले चले गए. ट्रू और नॉट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज प्लीज डू नॉट गेट कॉट ऑन द क्वेश्चंस. हमने कई बार देखा क्वेश्चंस का लेवल भी कई बार यूपीएससी के लेवल से डिफरेंट हो जाता है इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. दैट इज व्हाई आई सेड यू हैव द बॉलर हिमसेल्फ. प्लीज डू लास्ट 5 ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन. आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है या कोई फैक्ट लेवल है. और फैक्ट भी तो देना होता है ना. वी हैव टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन. कैन आई गिव यू दैट इंफॉर्मेशन थ्रू अ क्वेश्चन? ट्रू और नॉट? यस और नो? अंजू कह रही है सर डिस्ट्रैक्शंस हो रहा घर में तो दिल्ली आ जाना चाहिए. दिल्ली में तो नई मुख्यमंत्री बनी है बेटी, आप ही का इंतजार कर रही हैं कि आप आ जाओ, फिर आप जो तैयारी करेंगे. आप समझ रहे हैं? नॉन सीरियस आइडिया. घर में दिक्कत हो रही है, मैं बाहर आ जाना चाहती हूँ. अरे अगर इतनी दिक्कत है मम्मा पापा को बोलो कि एक हॉस्टल में एक कमरा ले लो. क्या दिक्कत है? वहीं पे आसपास मम्मा पापा खाना भी पहुंचा देंगे, अच्छा हेल्दी खाना मिलेगा. क्या दिक्कत है? So this is something which is not a genuine thing. Many people will have these thoughts. So I am saying I am having this conversation with the whole batch, and I often have such conversations because it's not just about what we are doing, it's about what conviction we are carrying to the examination. सिर्फ classes attend करने से और syllabus complete करने से आपकी चिंता खत्म नहीं होगी. ये stresses बने रहेंगे. And please come out of all these extracurricular thing. हमें ये लोग घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बाहर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए. ऐसा नहीं होने वाला है. यू विल हैव टू एनरोल थिंग्स. एंड कई बार आप ही नहीं पढ़ रहे और कई बार आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं. द होल फैमिली इज सो इंस्पायर्ड दैट दे स्टैंड बिहाइंड यू. यस और नो? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सर डेली पढ़ाई तो कर लेता हूँ, 2 दिन ब्रेक ले लिया, अब रिग्रेट हो रहा है. सो आई एम ऑल्सो वर्किंग अ लॉट. I badly need a break. Apart from the academic, the things which are happening at home also, so I have to take care of that also. If I get a break, will I be happy or sad? Happy. तो रिचार्ज हुए ना. तो ये कह रहे 2 दिन का वो हो गया, दैट्स ओके. इसमें रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? आपने ब्रेक ले लिया, कम विद न्यू एनर्जी. ब्रेक ले रहे हो. अभी होली आ रही है, बढ़िया से होली मनाओ. मतलब इट शुड बी लाइक फॉरगेट योर क्लासेस. एक दिन भाई पूरा मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली रंगों के साथ हूँ. ये सुनो, तुम्हें सिल्वर कलर का बनना है, गोल्ड का बनना है, जो कलर पसंद हो लगाओ, जो मर्जी लगाओ. सोने की गुड़िया वो बन के, यस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. प्लीज डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर दैट. उसके बाद कम बैक हमें भी दिखोगे कैसा क्या क्या रहा होली. ये सुनो, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सर लेक्चर नंबर 14 नॉट अपलोडेड. अब उसको छोड़ देते, अब हम वापस आ रहे हैं. सो आई होप आई डिड दिस कॉन्वर्सेशन सो दैट पीपल हु आर स्टिल इन दिस लेग ऑफ प्रिपरेशन एंड आर फेसिंग दोज थिंग्स, प्लीज डू दैट. और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वही क्लासेस करिए जो आपको इस समय प्रीलिम्स के लिए जरूरी. ठीक है, वी हैव कम इन मार्च. अब हमारे पास वही है. जैसे इंडियन ज्योग्राफी बहुत सी चीजें आती हैं तो हम वो कर रहे हैं. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रॉब्ली कंपलसरी के पेपर्स उस टाइम पर आप सिर्फ क्लास अटेंड कर लीजिए. कुछ सम पीपल आर अंडर दिस इंप्रेशन कि सर मेरा ऑप्शनल है, खत्म होना है, फिर मैंने कोचिंग में पैसा दिया हुआ है, वहां सिर्फ क्लास करिए, फिर उसको अभी रिवाइज नहीं करेंगे. रिवाइज किसे करेंगे? जो जीएस रिलेटेड है. यस, somebody saying please recommend some sources for subject wise, chapter wise. शिवांग, ये अब नहीं होता, मार्च में नहीं होता, ये 1 साल पहले होता है. कितने टॉपर्स ने अपने वीडियोस में डाल दिए ये सारी चीजें. यस,
ये तो मैंने रैंक 1 से भी ऐसे सवाल कर लिए, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। सर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, 10 में से 6 या 7 हो जाते हैं। पीवाईक्यू तो पुराने क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व क्या करना है, उन्हें तो रट लेना है। 10 में से 7 मत करो, 10 के 10 रट लो। सर मैंने एक भी क्वेश्चन समझ में आता नहीं आता है, बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, फिर कर क्या रहा है? यही तो चैलेंज है, वहां क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। द बिगेस्ट चैलेंज इज, आई एम टेलिंग यू, वी पीपल मेक आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट वेरी डे। हम लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता, तो आपको नहीं आना स्वाभाविक सी बात है। ये सुनो, हम क्या करते हैं, उसको 2 बार पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा दिस इज व्हाट आई नो, दैट इज द प्रैक्टिस, दैट इज द एग्जाम। आपके लिए एग्जाम है, वो हमारे लिए भी एग्जाम है, हमारे लिए भी एग्जाम है। So I just want to bring the human aspect of it, that it is a challenging question. उसकी language अच्छी होती है, you must understand that also. Yes. संदीप, हमारा environment and ecology and science and tech कब start होगा? तो मोदी जी अभी उत्तराखंड गए हुए हैं, लौटेंगे, बीच में वनतारा भी जाना हुआ है, लौटेंगे पूछते बता देते हैं। ये कल भी ये संदीप ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा है मेरा कब होगा, साडा हक एथे रख। मास्टर इज नॉट हियर फॉर दैट। जो प्लानर बनाने वाले लोग वो वहां पर वो डिसाइड करेंगे ना। मेरा काम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कब होगा, जब समय आएगा तब आएगा। अब जिस बैच के हैं उसका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो 25 बैच के हैं, जो अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनका वो होगा। ये सुनो सर एक बार शॉर्ट में एमजेओ बता दीजिए। शॉर्ट ही बताया था मैंने, तो लॉन्ग किया ही नहीं था, मैंने तो लॉन्ग किया ही नहीं था, मैंने शॉर्ट में बताया था। ट्रैवलिंग रेनफॉल सिस्टम्स, ट्रैवलिंग स्टॉर्म्स एंड रेन बेयरिंग सिस्टम्स इक्वेटर के चारों तरफ घूमते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट में जहां भी होते पानी पहुंचाते हैं। बिटिया शॉर्ट, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। आई विल अपीयर नेक्स्ट ईयर, विल बी बेस्ट अप्रोच फॉर मी। बेटा अभी जो इस ईयर के हैं कर लें। सो ये जो हम चैट में बात करना शुरू करते हैं, दिस हैज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, बिकॉज देन पीपल विल कम जो अभी हमारे एग्जाम के लिए अभी ओरिएंटेड नहीं है। किसी ने कहा अभी मैं 10th क्लास में हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। एंड दिस कॉन्वर्सेशन वाज पर्टिकुलरली डायरेक्टेड टू पीपल हु आर गोइंग टू राइट प्रीलिम्स 2025, ठीक है। चलिए, आर्कटिक ओशन, इसमें एक चीज आती है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। डू वी नो अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? यस और नो? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये हमें, ठीक है, ये हमारा आर्कटिक ओशन है। ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। पेरिस अकॉर्ड में कितना टारगेट रखा गया है? 1.5 तो नहीं, टारगेट तो 2 रखा था। Target was 2, that we will not exceed 2, and we won't even have 2 to come. So what we will do is we will reduce it to 1.5. Has the world touched 1.5? Yes. So global average 1.5 हो गया है. So 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लगभग हो गया है. Arctic amplification says that whatever happens in other latitudes, Arctic will have at least 4 times more. That means if the world's temperature has increased by 1.5, Arctic belt में कितना होगा? It will be 6 degree Celsius. This is called Arctic amplification. Is everyone okay? तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. पहले तो जब मैं पढ़ता था, जब स्टार्टिंग में when this idea came, they said the relation is 1:12. 1:12, अब 1:6 है, because Arctic भी पिघल रहा है and all those things. So this is called Arctic amplification. First of all, do we understand that? Second thing is, यहाँ पर हमारी एक जेट स्ट्रीम चलती है.
Which jet stream is this? This is called PFJ, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम. और हमें कौन सा वाला इंपैक्ट करता है? हमारे वाले का नाम क्या है? STWJ. ठीक है. नाउ लेट्स फॉरगेट द STWJ. पोलर फ्रंट में होता क्या है? ये जो 30 डिग्रीज पर जो वार्म एयर गिरती है वो इधर जाती है कि नहीं जाती है? व्हाट आर दीज? वेस्टर्लीज. और इधर क्या होती है? इसके नॉर्थ में क्या होती है? दीज आर पोलर ईस्टर्लीज. ऊपर क्या है? कोल्ड पोलर एयर. नीचे क्या है? वार्म ट्रॉपिकल एयर. इन दोनों के बीच में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द पोलर फ्रंट. ठीक है. अभी मैंने आपको साइड व्यू दिखाया. अब मैं टॉप व्यू दिखा देता हूं. दिस इज द नॉर्थ पोल. तो इसके चारों तरफ कौन सी वाली जेट स्ट्रीम चल रही है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम. गेट दैट? तो ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम हो गया. नाउ जस्ट इन माय लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट पैसिफिक ऑसिलेशन. उसको क्या बोलते हैं? एनसो. इंडियन ओशन ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? आईओडी. ऐसे आर्कटिक के ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? आर्कटिक ऑसिलेशन. तो दिस, ये जो जेट स्ट्रीम है ये ऑसिलेट करती है एंड दिस प्रोड्यूसेस आर्कटिक ऑसिलेशन. ठीक है. आर्कटिक में ऑसिलेशंस होती है और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है. वो मैं कैसे होगा वो भी आपको भी बताने वाला हूं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई जनरली डोंट टॉक ऑफ इन जनरल ज्योग्राफी एंड आई टेल माय स्टूडेंट्स कि जब इंडियन ज्योग्राफी आएगा तब जेट स्ट्रीम्स फिर से बात करेंगे. सो दैट इज वेयर आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू. इज एवरीवन ओके? सो इसने अपने अंदर किसको ट्रैप किया हुआ है? व्हाट इज ट्रैप्ड इनसाइड द जेट स्ट्रीम? कोल्ड पोलर एयर. और इधर क्या है? वार्म एयर. एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड द डायग्राम. ये साइड व्यू है. यहाँ पे पोल यहाँ पर है और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल ऊपर से. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस? सो लेट मी मेक दैट फॉर यू सो दैट इफ द वर्ड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कम्स, और ये सारे हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के सेंटेंस को समझने में हेल्प करेंगे. दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सेंटेंस इज. नॉर्थ पोल. What is this dotted line? Polar front jet streams. Sometimes what happens is the polar front jet streams become straight, absolutely straight. एक ये सिचुएशन हो गई. और एक सिचुएशन क्या है? This dotted is the average line. Sometimes it becomes like this. इससे फर्क क्या पड़ा? What is the change? In this what happens is that the cold air is caught in this area only. ठीक है. What is this? यूरोप. यूरोप में क्या है? Yes or no? So क्या हो गया इससे? हीट वेव्स. हैव यू हर्ड ऑफ हीट वेव्स इन यूरोप? कनाडा में फायर्स लग जाते हैं. वी आर कनेक्टिंग ऑल दोस थिंग्स. यहां कनाडा में फायर हो जाएगा, टाइगा में फायर. यहां पर क्या होगा? ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट होगी. ग्रीनलैंड आइस मेल्ट. और यूरोप में क्या होगा? यूरोप में हीट वेव होगी. Do you see the connection? So now your environment teacher would have talked something about it. If not, my job is to show you the where of it and how it is happening. Do you understand now the link behind why heat waves happen? Yes, why fires happen? So these are going to happen, and that is what we are looking at. The jet stream has gone
देयर। ठीक है, आपने सुना पिछली बार स्पेन में बाढ़ आ गई। when there is a lot of heat when there is a lot of heat, will there be evaporation and will that cause a lot of rain also? So heat wave भी आएगी, floods भी आ जाएंगे, तो यूरोपियन सिटीज में फ्लड आएगा। that's what we are talking about. is everyone okay? yes. अब यहां पर क्या है, यहां पर ओनली द बेल्ट है शिफ्टेड, ये थोड़ी ना कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, कैनेडियन ब्लिजर्ड आ गया। क्यों ब्लिजर्ड आ गया? रिमेंबर वो सारा ठंडा एरिया अब स्प्रेड हो गया है। ट्रू और नॉट? सो नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूएस में एक्सेप्शनल सर्दी पड़ गई, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, इतना नहीं पड़ता था, नीचे तक नहीं आता था। ये कहां तक आ गया? गल्फ ऑफ मेक्सिको तक आ गया। वैसे चचा बोल रहे हैं उसका नाम बदल रहा है, वो पगला ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इट्स ओके। ऐसा ना, तो गल्फ ऑफ ट्रम्प्स तक आ जाएगी वो, वहां सर्दी पड़ जाएगी। यस नो? सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसने होली से पहले भांग ले ली थी क्या? आई वाज जस्ट वंडरिंग, मतलब अचानक कनाडा मेरा 51 स्टेट है और गाजा में प्लाजा बनाऊंगा, यस, ग्रीनलैंड भी ले लूंगा, सब कुछ है जो भी है। तो ये भांग ना, प्रॉब्लम विद भांग है शराब का नशा उतर जाता है, भांग लंबा रहता है और हेलुसिनेशन भी करवाता है। यस, चिट्ठी भेजी ईरान को कि तुम्हारे न्यूक्लियर इशू पे भी बात करनी है। चचा उतार तो लो, जब उतरी होगी तो बात ठीक भी लगेगी, वरना जाकर फिर कुछ कुछ करने लगोगे। वो तुमने वो किया ही था जेलेंस्की के साथ वाला ड्रामा, अब हर जगह। अब इतना ज्यादा होगा तो बिग बॉस को टेंशन हो जाएगी कि पब्लिक बिग बॉस कम देखेगी, ये गोल्डन हेयर को ज्यादा देखेगी। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट ठीक है, होली पहले मना गया लगता है। आई एम श्योर इंडियंस बहुत हैं इसके उसमें कैबिनेट में, ये यहां से पुड़िया लेके गए। दे इंट्रोड्यूस्ड हिम टू दैट, दे सेड कब तक वो आप जो है कोलंबिया का माल लोगे? यस, इधर कानपुर से आया, ट्राई दिस। यस नो? एकदम बाबा जी की बूटी लेकर आए हैं, जैसे लिया भाई साहब, मतलब तब से इसके होश उड़े हैं, प्रोबेबली सेलिब्रेशन में कि फिर से बन गए। दैट्स दैट हो जाता है। सर वॉकर सेल रिवर्स टुगेदर इन ऑल ओशंस। देखिए वॉकर सेल इज अ लैटिट्यूडनल थिंग, सो वेर एवर इट इज फॉर्म्ड, यस इट विल रिवर्स, बट फिर उसके सिचुएशंस हैं, ऑल द टाइम इट डज नॉट रिवर्स। So capital of Indonesia has got partially immersed, so it decided to make Nusantara as capital. कुमार शामू ये जानकारी दे रहे हैं, ताजी ताजी करंट अफेयर्स। तुम एकदम आज तक टाइप की बात कर रहे हो, ये तो पिछले 3 साल से चल रहा है, अभी तो पूरी डूबी भी नहीं है जकार्ता, जकार्ता में सब सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य के लिए रखा गया। बट चलिए, जब जागो तभी सवेरा, इस बहाने यूपीएससी की तैयारी के बारे में पता तो चला ये कैपिटल जो है डूब रही थी। ठीक है, तो सभी लोग जो 25 की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं, कई बार न्यूज में आ जाता है पोलर वोर्टेक्स। सो पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? इसको ध्रुवीय भंवर कहते हैं। पोलर वोर्टेक्स इज व्हाट द कोल्ड एयर विच इज कंटेन्ड अराउंड द पोल विद इन द जेट स्ट्रीम। तो पोलर वोर्टेक्स कभी श्रिंक हो जाता है, यस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आर्कटिक ऑसिलेशन, और जब फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव आर्कटिक ऑसिलेशन। सो वो भी ऑसिलेट होता रहता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आर्कटिक। पैसिफिक समझ में आ गया, इंडियन भी समझ में आ गया, आर्कटिक भी आ गया। सर अटलांटिक भी बता देते तो उसमें भी, जो अटलांटिक में होगा क्या कहलाएगा? अटलांटिक ऑसिलेशन। डन। अटलांटिक ऑसिलेशन में बहुत चीजें डीप सी करंट से भी हैं, थर्मोहेलाइन से भी हैं। आई डोंट वांट यू टू गो इनटू दैट। ठीक है, श्वेता चौधरी लगी हुई है, पहले वैलिडिटी बढ़ाइए, क्या पॉसिबिलिटी है? केजीएस टीम अभी रिप्लाई करिए। मैं ओनली मी बिटिया, ओनली ज्योग्राफी इज हैपनिंग इन द क्लास, वही है। या चैट अप और डाउन कर सकती है मेरी टेक्निकल टीम। तो श्वेता जी ज्योग्राफी पढ़ने नहीं आए, वैलिडिटी के लिए आए। भाई भरत ये सब डाउन करो, ये सारा चैट मेरा भी ध्यान ले जाता है, मैं उतना अटेंटिव नहीं हूं जितना डोनाल्ड ट्रंप है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वैलिडिटी बढ़ाओ, वैलिडिटी बढ़ाओ,
नहीं तो क्या करेंगे, पाकिस्तान वाली ट्रेन रोक ले। कहां पर हुई, कौन सा पास, सब पास था, आपको बताया था, खैबर पास, गोलान पास, यस, तो गोलान पास, पास में जा रही थी, टनल आ रही थी, यहीं पे रोक दो। द टेरेन इज सच, द टेरेन इज सच, बलूचिस्तान का टेरेन इज दैट रॉकी टेरेन, यहीं से पासेस होते थे, टेक्निकल पासेस, आप उसके उस तरफ हो। सो इमेजिन बलूचिस्तान ज्योग्राफिकली भी तो अलग हो गया पाकिस्तान के मेन प्रोविंसेस से, मान लीजिए पंजाब से, तो दे आर सेइंग हम उस तरफ हैं, पहाड़ के उस तरफ है, हमें तो सेपरेट ही मिलना चाहिए। सो दैट बलूच लिबरेशन आर्मी एंड अदर बलूचिस्तान ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग इन दैट। तो जो हमने सुलेमान किरथर रेंज बनाए थे वो उनके उस तरफ आते हैं। That is why that the geographical reason for the separatist movement which is happening over there. So उन्होंने कहा यही तो रास्ता है, इसी पास से आप जाते हो, हम पास ही रोक देंगे। पहले तो उन्होंने अक्टूबर में तो जो ब्रिजेस थे, ब्रिज उड़ा दिए थे, इन्होंने ब्रिज दोबारा बना लिए, पता नहीं कहीं से एड आ गया होगा पाकिस्तान के बाद, इन्होंने पुल दोबारा बना लिया, कोई बात नहीं, रास्ता ही बंद करो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। So there is a lot of geography involved in that, and I also want to tell you that it is nearly 45% of Pakistan's territory is Balochistan. That's a huge area. Only 5% of Pakistan's population lives over there. तो पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेशन कहां रहती है, इस तरफ रहती है, यस, पंजाब में, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ दीज माउंटेन्स। सो उनका वेलफेयर होना है, उधर आपने छोड़ा हुआ है। सो डिड वी टॉक अबाउट दिस व्हेन वी स्टार्टेड इंडियन ज्योग्राफी, दैट इंडियन स्टेट्स which are demanding for a separate state कब आता है, जब आप उनका ध्यान नहीं रख पाते हो। True or not? Say for example मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड hilly state and उत्तर प्रदेश the plain state, so their priorities are different. So if you want a balanced regional development, then you need to prioritize them. But imagine the governments would be looking at 95% of their population or 5%. 95, 5 ने का वैसे हमें कोई नहीं देखता, nothing to lose, तो ट्राई करते हैं। And then there are groups which will come and international conspiracies keep on happening. तो उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, that they would know, and Balochistan is asking for liberation. Do we get that? So ये current affairs है, current affairs को geography से relate करो, वो उसे sentence में बनाएगा। So that's what we are talking about. I hope you understood polar vortex also. अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, this it has been found that has impacts on India also. Say for example, यहां पर अगर आइस मेल्ट होगा तो सी लेवल राइज होगा कि नहीं होगा, सी लेवल राइज, so that sea level rise will happen across all oceans, so that's one impact which we are looking at. Second is ये हीट ही तो है, यहां पर इधर हीट ज्यादा है, सोचो यहां तक हीट जो है ITCZ को ऊपर लेके जाती है, सुनो, अगर ये सब भी हीट हो गया, so imagine how much of Eurasia will be heated, yes or no? और North Indian Ocean is an enclosed sea, it is surrounded by land. If the land area is heated, will the North Indian Ocean get heated up more? Yes. तो जहां तक मुझे पता है, हम ये पढ़ाते थे बहुत सालों से कि भाई more cyclones on east coast of India. Yes or no? Less cyclone on west coast. Why? Why? अरे इतना फिजिक्स मत लगाओ, हम कौन सी विंड में है, सो वी आर ऑन द ट्रेड विंड्स। तो साइक्लोन बनेगा तो किस तरफ को धकेला जाएगा, इंडिया या म्यांमार, इंडिया, यस नो, जो यहां होगा वो कहां धकेला जाएगा, इंडिया या अवे फ्रॉम इंडिया, अवे फ्रॉम इंडिया। आई एम सेइंग it's not about a lifetime. वैसे तो बोल रहे climate change is happening so fast that you can see changes in a lifetime, but what I want to tell you is that the way climate change has happened, I am saying in a career itself I am seeing it. आज से 6-7 साल पहले तक हम बहुत ही क्लियर थे कि अरेबियन सी में कोई इशू ही नहीं है, अरेबियन सी में कोई इशू नहीं है, इंडिया को साइक्लोन का प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या होता है, साइक्लोन, ये जो अरेबियन सी है, दिस हैज गॉट हीटेड अप, ये क्या हो गया, ज्यादा वार्म हो गया, and we find that cyclones are hitting the, ज्यादा साइक्लोन बन रहे, 2023 and 2024 witnessed a big significant rise in the number of cyclones in Arabian Sea. अब मुझे बताइए, अगर साइक्लोन्स बनेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ज्यादा बारिश होगी कि नहीं होगी, वही करंट अफेयर्स की रिपोर्ट में आ जाएगा और उसी पे वो क्वेश्चन बना देगा क्वेश्चन बनाने वाला। यूपीएससी ऐसा नहीं करती है, बट हमने कहा ना, यहां तो क्वेश्चन वाले के पास टारगेट है, आज 10 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं,
उस बेचारे को खुद नहीं समझ में आया प्रीलिम्स कैसे पास करना है, कुछ तो क्वेश्चन बनाएगा वो, सो एज इट इज रिपोर्ट का सेंटेंस लेता है एंड ही पुट्स दैट. यस, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो दीज आर ऑल कनेक्टेड. हैव आई गिवन यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्शंस? आपसे लिखवाएगा नहीं, बट आपको क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए वहां पर. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए, अब आते हैं इंडिया में. इंडिया रेनफॉल वेरिएबिलिटी. So everyone, you would have met people, some people are very reliable, highly reliable, and highly unreliable. इनके पास आप ज्यादा रहना कोशिश करोगे. रिलायबल पीपल जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए. yes or no? That's what we are talking about. So what I'm trying to say here is, when we are talking about rainfall variability, we are in a way talking about rainfall की reliability. Yes, so I made that 100 centimeter line for you and rainfall will come, but will it come or not? वो तो promise है ना, that has happened over a long period of time, average value है, but इस साल आएगा या नहीं आएगा ये बताइए मुझे. So I have bought an air conditioner. I switch it on. Yes, the probability that it will cool is high or low? नया एसी है, अच्छी कंपनी का एसी है, हाई है ना. ऑन करूंगा चलेगा, ठंडा करेगा. ये सुनो, बट भारत में किसान ने अपनी फसल लगाई है मराठवाड़ा एंड विदर्भ में, ड्रॉट प्रोन एरिया. उसकी क्रॉप सक्सेसफुल होगी. हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी. लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, हाई तो नहीं होगी. एसी के लिए आपने एकदम से हाई बोला. यस सुनो, तो इंडिया में जो मानसून आता है, इंडिया में जो मानसून आता है उसकी प्रोबेबिलिटी इज जनरली 15 to 30%. ये इंडिया की रेनफॉल वेरिएबिलिटी है. कितना है रेनफॉल वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिया? ठीक है. So our scholars wanted to find out, is it the same everywhere? So tell me, I'm talking about Western Ghat. What is the probability of rain happening, heavy rain happening year after year? High probability or low? High probability. High probability means low variability. High probability means, हाई प्रोबेबिलिटी मतलब यहां तो पक्का आएगा ही आएगा. तो यहां पर कितनी होगी वेरिएबिलिटी? मे बी 5. ये 25%. 25% तक वेरिएबिलिटी इसमें, बिकॉज एवरेज यहां पक्का बारिश होगी. कहां पर बारिश नहीं होगी? बारिश के फेल होने का चांस कहां पर है? राजस्थान में. कितना आता है राजस्थान में रेन? 20 सेंटीमीटर. वो भी नहीं आएगा. एक साल निकल गया, बीकानेर में बारिश नहीं हुई. आर द पीपल यूज टू इट और नॉट? 60% चांस है कि यहां पे नहीं आएगा. 50% चांस है कि नहीं आएगा. 40% चांस है कि नहीं आएगा. 60% चांस है नो रेन विल रीच ओवर देयर. तो जिन एरियाज में बारिश नहीं होती है या कम होती है, उनकी वेरिएबिलिटी हाई है, लो है? हाई है. एरियाज विच डोंट हैव रेनफॉल, their variability is also very very high. और एरियाज विच हैव वेरी हेवी रेनफॉल, वहां की वेरिएबिलिटी कैसी होगी? ये 5 का है, यहां पर 10, 20, something of that sort. So it has been found in India, that rainfall variability
variability is a function of, you can write down, rainfall variability is a measure of, rainfall variability is a measure of the variation possible in rainfall from its expected averages, from its expected averages, from its expected averages. Data suggests that areas of low to very low rainfall, low to very low rainfall, low to very low rainfall have a much higher rainfall variability, have a much higher rainfall variability. If the average variability of the country, if the average variability of rainfall of the country is 15 to 30%, 15 to 30%, then the rainfall variability in low precipitation zones can be, low precipitation zones can be as high as 60%, as high as 60%. Full stop. While the reverse is true, while the reverse is true, while the reverse is true for, reverse is true for heavy rainfall regions, heavy rainfall regions, while the reverse is true for heavy rainfall regions often associated with lower rainfall variability, often associated with lower rainfall variability, lower rainfall variability much lower than the national average, much lower than the national average. So write a question, consider the following statements. ये आपके टीचर ने जो पढ़ाया वो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Consider the following statements. Number 1. Rainfall variability in India. Rainfall variability in India is inversely proportional. Rainfall variability in India is inversely proportional to the rainfall of a region, to the average rainfall of the region. Next, rainfall variability of Eastern Himalayan foothills,
is lower than the national average. Lower than the national average. So this is the question. The concept has been given to you. Please decide which statement to you seems correct. Which statement is correct? Both are correct? Both are correct or no? So पहला statement is रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर कम रेन होता है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एवरीवन. सेकंड स्टेटमेंट इज ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, यानी वो ज्यादा रेनफॉल के एरियाज हैं. रिमेंबर मोर देन 200 एट प्लेसेस इवन 400. तो अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो वहां की रेनफॉल वेरिएबिलिटी हाई होगी या लो होगी? लो होगी एंड मच लोअर देन नेशनल एवरेज है, वो लिखा है. Both the statements are correct. Again saying, you will gain confidence from your classes if you can see it from the point of view of questions. So, please write down further. ये तो हो गया, ये कर लोगे अपने आप, दोनों को टिक कर लो, both are correct or something. This is just to give you an example of how to make questions. अब ये टीचर है, टीचर knows what kind of question comes. मैंने आपके सामने अभी एक क्वेश्चन बनाया. अब imagine some of you, like after प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, आपका मन हुआ अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर भी करता हूं मैं, जो है कोचिंग में कंटेंट क्रिएशन करता हूं. यू मे नॉट हैव द क्लैरिटी, सो व्हाट विल यू डू? यू विल मैकेनिकली पिक अप आइडियाज फ्रॉम द बुक. बुक गलत तो होगी नहीं, बट यू विल ट्राई एंड कनेक्ट देम, एंड इन दैट द एसेंस माइट बी missed or the scope of your understanding is narrow, so the question also gets narrowly इंटरप्रेटेड. सो कभी कभी आपके क्वेश्चंस इस तरह से गलत हो सकते हैं, चिंता मत करिए. यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो काफी मैच्योर होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस आर टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस पैरामीटर्स. बट एज वी सेड कि गलती वहां भी होती है, एक दो क्वेश्चंस वहां भी वीक आ सकते हैं. सो प्लीज डोंट वरी ऑन दैट. इसलिए कह रहा हूं, टेक योर स्कोर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अगर आपको लगता है कि वहां पर यार ये वाला एरिया तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या इस एरिया में यहाँ पर सिर्फ बुक से एक फैक्चुअल चीज है, उसके लिए बुरा मत मानिए अपने लिए. लेट दैट फैक्ट बी इंफॉर्मेशन फॉर यू एंड देन मूव ऑन फॉर दैट. ठीक है. प्लीज राइट डाउन. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेनफॉल वेरिएबिलिटी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेनफॉल वेरिएबिलिटी has helped in better understanding, has helped in better understanding and identification, better understanding and identification of water excess and water deficit, water excess and water deficit regions of India, and water deficit regions of India. हो जाएगा कि वो हमें असेस करने में मदद करेगा? यस और नो? The planners get an advice. The planners get an advice. Get an advice या pre-advice about proneness to floods and droughts, proneness to floods and droughts, comma, the water budget in bracket demand and supply, the water budget, demand and supply, water budget computation, water budget computation for एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. हो सकता है कितना पानी आएगा कितना जाएगा, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. यस. this also helps in agricultural and industrial uses, full stop. This also helps in assessing and projecting
assessing and projecting means in future, projecting the surface and water, surface and underground, surface and underground water resources. मदद मिलेगी इससे या नहीं मिलेगी? ठीक है, सो मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं. तो क्वेश्चन जो पहला हमारा टॉपिक है ये है ड्रॉट. DROUGHT. ड्रॉट को क्या बोलते हैं? सूखा. 2016 इंपॉर्टेंट ईयर. So tell me, who made governments? God made them or people made them? People made them. Because governments served a utility. इसलिए हमने सरकारें बना दी. अब किम जोंग यूंग वो इलेक्टेड नहीं है, वो जबरदस्ती पावर में. True or not? You also heard, I think the dictator of Philippines also has been called for some ह्यूमन राइट वायलेशन अभी जो है वो सब भी चल रही. म्यांमार में भी मिलिट्री सरकार है. बट सरकारों का काम है, सरकार जो हम चुनते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, आर दे सपोज टू बी आर गॉड्स और आर दे सपोज टू बी आर रिप्रेजेंटेटिव्स? सो अगर ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, सूखा मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, सूखा मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, सूखा पड़ता है तो शुड द गवर्नमेंट डू समथिंग अबाउट इट? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्लान करना चाहिए. सो गवर्नमेंट के पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए. डिजास्टर मैनेजमेंट में बताया होगा कि शॉर्ट टर्म में अगर कहीं पर एकदम सूखा हो गया, पानी नहीं मिल रहा, वाटर ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एनिमल्स भी मर रहे हैं, तो वहां पर क्या जाती है? ट्रेन भेजो, जैसे भी भेजो. हमने इंटरनेशनली भी मालदीव्स को हेल्प किया, उनका पानी खत्म हो गया, उन्होंने जहाज भेज दिया. ठीक है, बुंदेलखंड हमारा रीजन है जो कि एलिवेटेड रीजन है, तो वहां पर हम क्या भेजते हैं? जल रेल भेजते हैं. यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस. सो इमीडिएटली पानी का शॉर्टेज होगा. आपने देखा होगा शहरों में सरकार टैंकर भेजती है, नहीं भेजती है? भेजती है. सो दैट विल हैपन. फिर कुछ मीडियम टर्म होने चाहिए. मीडियम टर्म इज व्हाट? मीडियम टर्म इज गवर्नमेंट बिल्ड सम स्टोरेज थिंग्स. तो पानी का टैंक, उसको मैनेजमेंट, सप्लाई साइड एंड ऑल दोस थिंग्स दैट इट शुड बी डू. एंड देन देयर शुड बी सम लॉन्ग टर्म आल्सो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिवर बेसिन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ग्राउंड वाटर. हमारी एक वाटर पॉलिसी होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नाउ इफ देयर इज ड्रॉट एंड पीपल सफर बिकॉज ऑफ ड्रॉट, फार्मर्स की क्रॉप बर्बाद हो जाती है. यस, एनिमल्स, जो उनकी एनिमल वेल्थ है वो मर जाते हैं. शुड देयर बी सम कॉम्पनसेशन? यस और नो? क्यों देना चाहिए? सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो टैक्स इसीलिए तो ले रहे हैं, तो सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके. So it was year 2016. It was year 2016 and it was a very bad drought year. Drought year, सूखा पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था. और इंडिया की 9 से 11 स्टेट्स में सूखा पड़ा. ठीक है, सूखा पड़ने के लिए जनरली अगर आपकी रेनफॉल डेफिसिट is more than 10% of LPA. Please don't write this. Long period average कितना? 118 सेंटीमीटर. अगर उससे 10% नीचे चला गया, यानी 11.8% सेंटीमीटर कम आया है, that and affects more than 20% of area of the country, that is called national drought. क्या बोलते हैं? नेशनल ड्रॉट. अभी लिखने की जरूरत नहीं, फॉर रीजन आई एम टेलिंग यू. बट नेशनल ड्रॉट तो पूरे ईयर का होता है, पूरे ईयर का होता है. बट हमारा किसान किसका इंतजार कर रहा है? मॉनसून का. मॉनसून फेल हुआ तो एक हमारे पास सीजनल ड्रॉट भी होता है. क्या होता है? सीजनल ड्रॉट. इफ इन दैट सीजन rainfall was less than 25% of season's average, that is called as a normal drought. क्या होता है? Normal drought. If the rainfall is shortage, seasons less than is 26 to
50% ऑफ सीजन्स एवरेज, इससे कम हो गया, दिस इज कॉल्ड मॉडरेट ड्रॉट. और मोर देन 50% शॉर्टेज, दैट्स अ सीवियर ड्रॉट. 2016 में the situation in 9 to 11 states of India was that of a moderate drought going towards severe drought. Do we get that? लोगों की फसल खराब हो रही है, सब कुछ हो रही, तो ये जो ड्रॉट होता है, एक तो सिंपल होता है मीटियोलॉजिकल ड्रॉट. मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, मीटियोलॉजिकल ड्रॉट मतलब रेनफॉल फेल हो गया, ये मीटियोलॉजिकल ड्रॉट. बट देन देयर इज अ फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, उसके बाद आता है वो एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, उसके बाद आता है. व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट? रेनफॉल डिड नॉट कम बट यू स्टिल हैड वाटर इन योर पॉन्ड्स, यू स्टिल हैड वाटर इन योर रिजर्वायर्स, यू स्टिल हैड ग्राउंड वाटर. अब वो भी सूख रहा है, सो पॉन्ड्स आर ड्राइंग अप. Your hand pump which used to give us water, now hand pump is unable to give us water, that is called. So कौन सा पहले आएगा? सर ये पहले आएगा, मीटरोलॉजिकल पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? हाइड्रो. अच्छा एक बात बताइए, नाउ ग्राउंड वाटर हैज गॉन डाउन, योर सरफेस वाटर हैज आल्सो ड्राइड अप. ठीक है, अभी तक किसान किसी तरह चला रहा था, अब उसकी जमीन भी सूख गई है. सो विल द स्टैंडिंग क्रॉप स्टार्ट डाइंग? Yes, so when your crops dying, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट. अभी क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, उसका एक रीजन है, फिर बताऊंगा. रीजन सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे. ये कुंभ में जो पानी था उसका क्या स्टेटस है? बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है. किसने बताया? सीपीसीबी ने बताया था. Did you hear that report? CPCB said that the water at Kumbh was much higher than expected level. ये पुरानी है, आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो. CPCB की रिपोर्ट बदल चुकी है. CPCB कह रही बहुत सारा डेटा हो गया था, कंफ्यूजिंग डेटा था, तो इसलिए हमने ऐसा कह दिया. सब चंगा सी. आपने नहीं पढ़ा, बदल गए. ऐसा हो जाता है, छोटी बात थोड़ी. तो यहाँ पे 11 राज्यों में, 9 से 11 राज्यों में क्या पड़ रहा है? सूखा पड़ रहा है. ये स्टेट आ गई है. फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर क्रॉप्स, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ स्टॉक्स, एंड द गवर्नमेंट शुड डू व्हाट? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कॉम्पेंसेशन कुछ करना चाहिए. वो तो तब करेगी ना जब ड्रॉट डिक्लेयर करेगी. सो डिक्लेरेशन ऑफ ड्रॉट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन. कंडीशंस ऑफ ड्रॉट ये कौन बताता है? IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे CPCB है. CPCB इज एन एजेंसी. सो IMD ने कहा कि ये ड्रॉट लाइक कंडीशन है, एंड स्टेट ने कहा ठीक है होगी, हम तो ड्रॉट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं. नहीं करेंगे तो स्टेट, और अमृतकाल में ड्रॉट हो ही नहीं सकता है, तो स्टेट ने माने ही नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस इज सर्टेन एजेंसीज वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. यस, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. दे सेड हमारे पास IMD का डेटा है, ये टाइप्स ऑफ ड्रॉट होते हैं, दिस इज द क्राइटेरिया, पार हो गया है. एंड व्हाई आर दी स्टेट्स फर्स्ट डिक्लेयरिंग ड्रॉट एंड सेकंड गिविंग एड? सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बहुत गलत बात है, लोगों को एड दो एंड ऑल दोस थिंग्स. अब अमृतकाल में ऐसी बात आ गई तो गलत बात है कि नहीं? पहले तो सूखा डिक्लेयर किया, कुछ एड वेड दिया, फिर शाम को IMD को बुलाया. हाँ वे क्या क्या दिक्कत है? तुमने रिपोर्ट कैसे बनाई? सर वो बारिश हम मेजर करते हैं. किससे मेजर करते हो? किससे मेजर करते हो? सर वो रेन गेज होता है. सुनो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो था वो वाला यूज करना है पहले तो. एक तो तुम्हें अंग्रेजों वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से तुमने कहा कैसे ड्रॉट हो गया. डू यू नो 2016 के बाद इंडिया में ड्रॉट नहीं होता है. Indian Meteorological Department has actually expunged the word drought. अब ड्रॉट वर्ड ही नहीं है हमारे पास, ऑफिशियली आ गया. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिमूव्ड द वर्ड ड्रॉट. ये सिलेबस में, पुराने सिलेबसेस में रह गया है अभी तक, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इन इंडिया. ये सब कहानी बाद की. अब हम क्या करते हैं,
रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल डेफिसिट। ड्रॉट कौन बताएगा? वो मालिक बताएंगे। हमारा काम है बारिश कितनी हुई वो बताना। इनको एकदम बता देंगे औकात में रहो, इतना डेटा लेके कहां जाओगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अमृतकाल में सूखा बता रहा है। So that's why I did not do that. But आपको ड्रॉट समझ में आया कि नहीं? ड्रॉट इज अ सिचुएशन जिसमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है, एंड पानी की शॉर्टेज के डिफरेंट लेवल्स हैं। सो द फर्स्ट लेवल इज व्हाट? फर्स्ट लेवल इज बारिश नहीं हुई। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सूखा तब आता है जब आप टीवी पे देखते हो। टीवी पे देखोगे एक जो है कंकाल पड़ा होगा, यस, स्केलेटन ऑफ एन एनिमल, और वो सूखी जमीन जिसमें क्रैक्स हो रहे हैं सब कुछ, और वो वीडियो वाला लगा रहा है और कह रहा है देखो पानी शॉर्टेज हो रहा है। और फिर जैसी मीडिया है, हाँ हाँ इटली से तो बेटर है हमारी सिचुएशन, वहां देखो वहां तो सूख के मर गए, हमारे वाले को कुछ नहीं हुआ, अभी भी मिल रहा है। और स्टूडियो में पानी मंगाता है वो अपने लिए, मीडिया वाला। So that's what we are talking about. That used to be the situation. This used to be the criteria. जो मैंने आपसे कहा डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने ड्रॉट किया तो ड्रॉट का एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए था. So that's what is drought. But 2016 से हमने क्या किया? The word drought is expunged. ड्रॉट नाम की कोई चीज भारत में होती नहीं है, ये अंग्रेजों की देन थी, हमने हटा दी. ठीक है, अब हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं. सो डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रॉट? ये कुछ लिखना है तो आप मीटरोलॉजिकल ड्रॉट्स लिख सकते हो. मीटरोलॉजिकल ड्रॉट इज फेलियर इन रेनफॉल. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट डिप्लीशन ऑफ, स्पेसिफिक बता रहा हूं, फिर बाद में बोलेगा सर इसको शॉर्ट में बता दो. डिप्लीशन ऑफ SW and GW. What is SW? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. आपके जो रिजर्व्स है ये नीचे जाने लगेंगे. और यहां पर क्या है? प्लांट एंड सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है. यहां पे सरफेस ग्राउंड वाटर स्ट्रेस होता है. और मीटरोलॉजिकल में तो आपका उस सीजन में रेन नहीं हुआ. Post 2016, post 2016, the word drought has been removed. India has All India Rainfall category. हमारे पास क्या है? All India Rainfall category. All India Rainfall category. ठीक है. नंबर 1 नॉर्मल रेनफॉल, ये कैटेगरी कोड में आएगा, कैटेगरी, और यहां पर आएगा रेनफॉल. नॉर्मल रेनफॉल. नॉर्मल रेनफॉल कब होगा? इफ द रेनफॉल इज ±10% ऑफ LPA. रेनफॉल 118 होना चाहिए. 10% ऊपर हुआ नॉर्मल माना जाएगा, 10% नीचे हुआ नॉर्मल माना जाएगा. दिस इज ऑल इंडिया, ऑल रेनफॉल लिख दिया, सॉरी, ऑल इंडिया. सो दिस इज द नेशनल लेवल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. फिर हमारा हो सकता है बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल. बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल. इसमें भी इजी है. If it is less than 10%, so 10% से भी और नीचे चला गया 11%, 12%, अप टू 10% में नॉर्मल है. बट 10% से भी ज्यादा नीचे चला गया और 10% से भी ज्यादा ऊपर चला गया तो अबव नॉर्मल. ठीक है. नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेफिशिएंट. डेफिशिएंट, डेफिशिएंट में हमने 10 से ऊपर कर दिया इसको. बिटवीन 10 to 20% डेफिसिट एंड हाउ मच एरिया? 40% एरिया. तो डेफिशिएंट रेनफॉल. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लार्ज
deficient. This is more than 10% and more than 40% of area. So means 40% से ज्यादा कंट्री का एरिया जो है उसमें 10% से ज्यादा रेनफॉल का शॉर्टेज हो गया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट लार्ज डेफिशिएंट. सो पहले इस सब को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता था? पहले ये ड्रॉट होता था, अब हमारे यहाँ ड्रॉट नहीं होता, अब क्या होता है? डेफिशिएंट होता है. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कहा तुम्हारा इतना ही काम है, तुम ये बताओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे सूखा पड़ा है या नहीं पड़ा है. डू वी गेट दैट? सो वो हम पढ़ सकते हैं, एजेंसी अपने पास होती है, उसको बुला दिया, रिपोर्ट्स कर दी. So that's what we are talking about, all India rainfall category. So this is there. और ड्रॉट का जो भी आपको रिस्पॉन्स बताया है, ड्रॉट का जो भी रिस्पॉन्स बताया है वो आप लिख लेंगे. आई वॉन्ट यू टू राइट सर्टन थिंग्स. प्लीज राइट डाउन. अब मैं इसको जोग्राफिकल लिखवा रहा हूं बिकॉज आई कैन नॉट गो बाय द गवर्नमेंट वाले आइडिया से नहीं चलेंगे. सो प्लीज राइट डाउन. जोग्राफिकली स्पीकिंग, जोग्राफिकली स्पीकिंग, जोग्राफिकली स्पीकिंग, the regions of high rainfall, the regions of high rainfall variability, the regions of high rainfall variability show a degree of drought proneness, show a degree of drought proneness, मतलब सूखा पड़ने की संभावना है. दो द वर्ड इज स्टिल नॉट देयर बट आई एम यूजिंग दैट. शो अ डिग्री ऑफ ड्रॉट प्रोननेस इन इंडिया. यस. अर्लियर एस्टिमेट्स जो पहले हुआ करते थे, आज ये बात होती ही नहीं है, वर्ड ड्रॉट इज नॉट यूज्ड, बट अर्लियर एस्टिमेट्स यूज्ड टू कैटेगराइज. अर्लियर एस्टिमेट यू कैन राइट डाउन बिफोर 2016. Earlier estimate before 2016 used to estimate, earlier estimates in bracket before 2016 bracket close used to estimate nearly 68% of India, 68% of India used to estimate nearly 68% of India as drought prone, as drought prone. Yes, with 35% area, with 35% area having rainfall, having rainfall 75 to 112 centimeters as moderate drought, and 33 बचा 33% and 33% area having less than 75 centimeter rainfall as chronically drought prone. So 68% ऑफ इंडिया में, अब ये स्पेशियल वेरिएशन है. रिमेंबर टेम्पोरल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 8 महीने अपने पास पानी नहीं आता है. स्पेशली कितना एरिया? 2/3 ऑफ, कैन आई से नियरली 2/3, नियरली 2/3 ऑफ इंडिया के पास पानी की कमी रहती थी. ये मॉडरेट ड्रॉट वाले हैं ये, और वो जो आपका बचा हुआ 32% है वो क्या होगा? रिमेंबर लो रेनफॉल वेरिएबिलिटी रीजन, वहां पे बारिश आई जाती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती. यस, प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस. The regions with drought proneness, the regions with drought proneness include Uttarakhand, Western UP, Malwa,
plateau, Malwa plateau, comma Kutch and Kathiawar peninsula, Kutch and Kathiawar peninsula, southern Tamil Nadu, southern Tamil Nadu, फेमस डिस्ट्रिक्ट नोन देयर इज तिरुनेलवेली, वहाँ खूब सूखे के लिए जाना जाता है. यूपी का वेस्टर्न यूपी एंड बुंदेलखंड, वहां पर जो हमने लिखा था, सो यू कैन राइट डाउन, यहाँ पे लिख दिया सदर्न तमिलनाडु, प्लीज राइट डाउन. ओडिशा, ओडिशा इन ब्रैकेट के बी के डिस्ट्रिक्ट्स, के बी के डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी, बालनगीर, कोरापुट, के बी के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कालाहांडी, बालनगीर एंड कोरापुट. यस, KBK districts and the Bundelkhand region, and the Bundelkhand region. Plus the chronically drought prone desert Marusthali region, the chronically drought prone desert and Marusthali region. Chronically drought prone desert and Marusthali region. Remember chronically is less than 75, so वो है. और बाकी इन सब में जो मैंने आपसे कहा ये हमारे हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी के हैं. नीचे हमने तेलंगाना और रायलसीमा नहीं लिखा, वो जो स्टेट आई है, एक तेलंगाना रायलसीमा भी डाल लो कहीं पे, जहां पे तमिलनाडु लिखा है सदर्न तमिलनाडु, उसके बाद लिखो तेलंगाना एंड रायलसीमा, तेलंगाना एंड रायलसीमा. सर वेयर इज इट? तेलंगाना स्टेट में जो प्लेटू रीजन है दैट इज कॉल्ड द तेलंगाना एंड द रायलसीमा प्लेटू. दिस इज अ रेन शैडो, दिस इज अ रेन शैडो रीजन. सो यहीं पे तेलंगाना रायलसीमा है. इसके नॉर्थ में महाराष्ट्र में क्या है? विदर्भा एंड मराठवाड़ा. तो ये जो आपके एरियाज हैं ये ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं. इज एवरीवन क्लियर अबाउट ड्रॉट कहां पर आता है, कैसे हैंडल करना है? वो आप अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट, जिन बैचेस में नहीं हुआ है डोंट वरी, योर डिजास्टर मैनेजमेंट टीचर विल आल्सो टॉक अबाउट इट. मैंने उसके एरियाज बता दिए. ठीक है, अब फ्लड पे आ जाए. ड्रॉट हो गया, फ्लड. सो पहला आई वांट यू टू टेल मी इफ ड्रॉट वाज मॉइस्चर स्ट्रेस, कैन आई से फ्लड इज अ सिचुएशन ऑफ मॉइस्चर एक्सेस, water excess leading to inundation. Inundation मतलब डूब भी जाएंगे. So flood, when we are writing, please write down, flood refers to a situation of water excess. It refers to a situation of water excess leading to submergence or inundation of land, leading to submergence or inundation of land, submergence or inundation of land. Traditionally it happens in areas of high rainfall. Traditionally it happens in areas of high rainfall. Yes, in bracket you can write down Ganga Brahmaputra plains, Ganga and Brahmaputra plains. ट्रेडिशनली यहां पर बाढ़ आती है. नदियां हैं, ये आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स दैट्स देयर एंड अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरीज, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, additionally coastal flooding, additionally coastal flooding can be attributed to cyclonic storms. Coastal flooding can be attributed to
साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो कहां पर आ रही? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में तो आ ही रही है, उसके बाद यहां पर आ गए कोस्टल एरिया में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स प्लस प्लस स्पोरेडिक फ्लड्स। स्पोरेडिक फ्लड्स, स्पोरेडिक मीन्स ओकेजनल, कभी कभार आने वाली शॉर्ट लिव्ड फ्लड्स, प्लस स्पोरेडिक फ्लड्स इन लो लाइंग, इन लो लाइंग बेसिन्स। लाइक कहां पर हमारे लो लाइंग रीजन है? छत्तीसगढ़ बेसिन लो लाइंग रीजन है, वहां आ सकता है छत्तीसगढ़ बेसिन। सेकंड, गुजरात प्लेन्स, छत्तीसगढ़ बेसिन, गुजरात प्लेन्स एटसेट्रा। छत्तीसगढ़ बेसिन, गुजरात प्लेन्स एटसेट्रा। दैट in contemporary times the phenomena of urban flash floods, the phenomena of urban flash floods in major cities of India is also becoming common, is also becoming common. तो अर्बन फ्लैश फ्लड्स भी खूब आ रहे हैं इंडिया में, तो दैट्स ऑल्सो बिकमिंग कॉमन। तो अगर इंडिया का मैप अगर हम देखें और हम सोचे फ्लड्स कहां पर आ रहे हैं, इफ आई एम लुकिंग एट फ्लडिंग, वेयर इज फ्लडिंग हैपनिंग इन इंडिया, सो कैन आई से इस जोन में तो फ्लडिंग आई रही है, दिस जोन, एक फ्लडिंग जोन ये हो गया। यस, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, अभी बनाना नहीं है, पहले देख लो। दूसरा, अभी चेन्नई में मारा था, इधर भी आता है। ये वाला जनरली इंडिया से दूर जाता है, बट रिकर्व मार के इधर भी मार सकता है। सो ये क्या हो गया? कोस्टल साइक्लोनिक फ्लडिंग। उसके बाद लो लाइंग एरिया क्या है हमारा? ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का बेसिन है, महानदी, वैनगंगा, पैनगंगा बेसिन, एक ये लो लाइंग एरिया है। ये जो यहां का जो प्लेन है, गुजरात का प्लेन, रिमेंबर दिस, लो लाइंग एरिया। यहां पर रिवर्स भी हैं, दे विल ऑल्सो गेट दैट। ये हमने किया। उसके अलावा अभी चेन्नई में बाढ़ आई थी, ये चेन्नई हो गया। मुंबई में फेमस बाढ़ जो आई, मुंबई फ्लड्स, मुंबई। दिल्ली, गुड़गांव, ये तो कभी भी बाढ़ आ जाती है। चंडीगढ़ में भी हो चुका है, शिमला में भी कर चुका है। बड़े शहरों में कभी भी बाढ़ आ जाती है। बड़े शहरों में बाढ़ क्यों आती है? सिर्फ एक चंडीगढ़ में फ्लड हो गया, चंडीगढ़ में फ्लड हुआ। अर्बन फ्लडिंग, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो सीवेज की वजह से हुआ। हाँ जी, तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हुआ तो उससे बाढ़ आ गई। तो वहां नहीं जा पाया तो कहां जाएगा? सीवेज में। तो वही तो वो कह रहे हैं, वो सीपेज नहीं कह रहे हैं, सीवेज, सीवेज, ड्रेनेज। तो इसको जबरदस्ती, पहले तो ये बताओ, बाढ़ को ग्राउंड वाटर से क्यों जोड़ रहे हो? तुम यही कह रहे हो पानी नीचे नहीं जा रहा है, उसका समस्या बाढ़ से लेना देना नहीं है, पानी ऊपर ही रुक रहा है इसलिए बाढ़ आती है, यही कहना चाह रहे हो ना? तो वो उसने इंग्लिश में यही कहा है, ये जो सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो उस कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है, वो यही कह रहा है। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड्स किस लिए हो रहे हैं? पहले तो ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन वाला लॉजिक है कि पानी आएगा, पानी नीचे ना जाकर सरफेस पर ही रहेगा, एंड सरफेस पर होना चाहिए, वो मूव करेगा। तो जब सिटी प्लान की जाती है, सिटी ऐसे प्लान की जाती है, उसकी ड्रेनेज होती है। ये सुनो, ये ORN में आग क्यों, वो पानी क्यों भरता है? अभी तो शुक्र है आग नहीं लगी है, वो भी बड़ा वाला कांड है। यहाँ पे पानी क्यों भरता है? आपने देखा सड़क के नीचे ये इस तरह का लो लाइंग है, तो ये डिप्रेशन वाला जो एरिया हो गया, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपने देखा यहाँ पे खुदाई चल रही है,
अब बाजू में क्या बना रहा है, किनारे किनारे पे नाला बना रहा है। जो लोग नहीं गए अच्छी बात है, बरसात में जब आएगा तो दे आर क्रिएटिंग नाउ ड्रेनेज सिस्टम की नाली बनाओ ताकि ये कहाँ जाए, कहाँ जाए। रिमेंबर ये ऊंचा क्यों है, क्योंकि हम लोग अरावली में हैं, तो ये जो ऊंचा नीचा है ये क्या कर रहे हैं, नाला बना रहे हैं। मैंने वो नाला देखा है, 1.5 फीट का नाला है वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, सरकार कर रही है, करते दिखना चाहिए। वो होगा नहीं होगा सब चंगा सी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो भी रिपोर्ट आएगा रिपोर्ट वाले की भी पेशी हो सकती है, ट्रू और नॉट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट ड्रेनेज, प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट ड्रेनेज। आप एक बात बताइए, आपके घर में आटा दाल रहता है कि नहीं रहता है? यस, डज योर मामा कीप सम फ्लोर एंड सम पल्सेस एट होम? तो किसके घर में 100 किलो दाल रहती है? तो 100 किलो क्यों करना है, ब्लैक मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं। वो कह रहा है मेरे घर में रहती है, किसानी कर रहे हो तो अलग बात है भाई। तो 100 किलो तो कोई नहीं रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? खराब हो जाएगा, जितना यूज करना है वही करो ना, ट्रू और नॉट, उतना ही यूज करो। सो सिटी अपना ड्रेनेज कैपेसिटी कैसे बनाता है कि भाई रेन होगी, से फॉर एग्जाम्पल एवरेज रेन ऑफ इंडिया का तो 112 है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली का है 80 सेंटीमीटर्स, चंडीगढ़ का है 70 सेंटीमीटर, तो आप ड्रेनेज कैसे बनाओगे? 70 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन 1 ईयर, 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 ईयर के हिसाब से ड्रेनेज बनाओगे, या फिर 118 सेंटीमीटर एवरी डे के हिसाब से बनाओगे? 1 ईयर के हिसाब से बनाओगे ना। सो सिटीज की जब प्लानिंग होती है तो उनका ड्रेनेज भी क्लियर किया जाता है कि दिस मच इज द कैपेसिटी। नाउ विद क्लाइमेट चेंज चंडीगढ़ में रेन हैपन्स and it is 70% of the annual rain in 24 hours. That is why the capacity mismatch happens. Get that? तो कई कारण है, जैसे बॉम्बे कोस्टल एरिया, वहां बाढ़ आने का मतलब ही नहीं है, लेकिन बॉम्बे में जो एक्सेस पानी होगा विल गो इनटू द सी। फ्रॉम वेयर विल इट गो? थ्रू द रिवर्स दैट आर देयर। सो द फेमस रिवर इज द मीठी रिवर। मीठी रिवर को इन्होंने अपना माल डाल डाल के और मीठा कर दिया। Yes or no? मीठी रिवर गॉट क्लॉग्ड, सो पानी आ रहा है वो पानी बाहर नहीं जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई मुंबई फ्लडिंग हैपेंड। चेन्नई में तो आपका साइक्लोन भी आता है, साइक्लोन लेकर आता है, टाइड के साथ आता है, कोस्टल फ्लडिंग लेकर आता है बिकॉज ऑफ द वेव्स, एंड चेन्नई ऑल्सो हैज अ रिवर कॉल्ड कूम रिवर, so Coombe River is also there. Yes or no? So I was just talking to my brother, he's in Australia, Brisbane. So Brisbane में last 2-3 दिन से उनके यहाँ पर एक साइक्लोन का प्रेडिक्शन आ रहा था, तो वी वर लुकिंग एट दैट साइक्लोन, एंड ही सेज कि साइक्लोन, आई एम जस्ट गिविंग यू केस स्टडी ऑफ हाउ पीपल आर प्रिपेयरिंग। सो ही सेज यार साइक्लोन में ये लोग बोल रहे हैं सैंड बैग्स रख लो और इतना पानी आएगा उससे रोकोगे, इसे सैंड बैग से कुछ नहीं होता। ही सेज ये घोड़े खरीद रहे हैं, ठीक है तू तो नहीं खरीद रहा है, ही सेज नहीं खरीद रहा हूँ। देन ही सेड पावर कट विल बी देयर बिकॉज व्हेन साइक्लोन कम्स, तो बिजली के खंभे गिर जाएंगे, इलेक्ट्रोक्यूशन होगा, पावर कट विल बी देयर। अब वहां पे खाना कैसे बनता है? सब इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं। तो बोला कि अब वो गैस का चूल्हा लेना है, मैंने कहा ले ले, इसे बिक गया सब स्टोर्स में सोल्ड आउट, सब गोरों ने पहले ही ले लिया है। ओके, सो देन ही सेंट मी द लाइव दिस थिंग ऑफ द वेदर। सो ही इज लिविंग समवेयर इन ब्रिस्बेन, सो उसका ही लिव्स इन अ बे, ये बे है और इस बे के सामने एक इतना बड़ा आइलैंड है, यहां पर भी एक आइलैंड है, ठीक है, एंड ही इज लिविंग हियर, और इधर एक साइक्लोन बना हुआ है। ऐसे तेरा तो चिल है, देखिए तो नेचुरल प्रोटेक्शन है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यस और नो? ही सेज या प्रोटेक्शन तो है, बट दे आर सेइंग फ्लडिंग इज अ प्रॉब्लम। व्हाई फ्लडिंग? रिमेंबर जब इतना सारा पानी आएगा इसी से घुसेगा ना, जब घुस रहा है जस्ट लाइक मेट्रो, कोई बाहर तो आ नहीं सकता, इस बे में पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? सो विल देयर बी अ राइज और नॉट? ट्रू और नॉट? ऐसे हाँ, फ्लडिंग का तो इशू है। बोला हवा का कोई इशू नहीं बिकॉज दिस इज अ माउंटेन थिंग। अब ये तो लैंड पर है ना, ही हैजंट सीन साइक्लोन एट सी, में तो सी में देख कर आया हूँ, सो आई एम तो जस्ट प्रिडिक्टिंग कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एंड दैट टू साइक्लोन लेवल 2। साइक्लोन लेवल 5 इज वो 120 क्रॉस कर गया, लेवल 2 इज हार्डली एनीथिंग, बट ठीक है वहां पर सब वो आ रहा था। देन आई रेड कि ब्रिस्बेन सिटी है,
So there is a river called Brisbane River. So उसमें आ रहा है कि यहाँ पे फ्लड आएगा. आई अंडरस्टैंड. ये सब पानी भरेगा, फिर इसको भी तो चुक करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा नो. एंड पीपल लिव हेयर. बुढ़ापे में अपनी अपनी बोट खरीद रखी है और बोटिंग करता है. इसकी बोट भी जाएगी, सब जाएगी. देन आई आस्क्ड हिम, तेरे पास, आर यू नेक्स्ट टू ब्रिस्बेन रिवर? बोला नहीं नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ. अब कोई टेंशन ही नहीं है, मजे से रहो. एंड आई सेड फ्लडिंग इज देयर. ही सेज आई लिव ऑन अ एलिवेशन ऑल्सो. सो ये एरिया क्या है? एलिवेटेड. चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन ऑल्सो मैटर्स इन फ्लडिंग. तो जो हमारे कोस्टल फ्लडिंग होता है ना, दिस इज अ वेरी माइक्रो लेवल केस स्टडी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो दिस इज लाइक ए पर्सनल थिंग. सो अभी वो साइक्लोन चला गया एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम. 2 दिन से लाइट नहीं आई, बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम ही हैड. ही से स्ट्रॉन्ग विंड्स वर देयर, रेनफॉल भी थोड़ा बहुत हुआ, बट डिड नॉट एंड द साइक्लोन आल्सो डाउनग्रेडेड. वन थिंग which I learned from this was, इसको क्या बोल रहे हैं, मुझे अब टर्म नहीं याद आ रहा है. बट साइक्लोन्स जो पहले आया करते थे, दे यूज्ड टू कम एंड हिट द कोस्ट. यस. अब क्या हो रहा है, साइक्लोन्स आर कमिंग एंड ये कोस्ट को मारेंगे. दैट्स इट. अब साइक्लोन्स कम एंड दे स्लो डाउन देयर अप्रोच. साइक्लोन तो स्ट्रांग है, बट अप्रोच क्या होगी? वो स्लो डाउन हो रहा है. So they will not pass the coast easily. So the duration of cyclonic conditions, what will happen? ये बढ़ रहा है. So with global warming, the frequency of cyclones increasing, the intensity increasing, and इसको cyclone stagnation बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Slowing down of a cyclone coming close to the coast, it stays longer. So when I'm talking about coastal flooding in India, it is also a function of टोपोग्राफी. ऐसा कोई लेक हमारे ईस्ट कोस्ट पर है? चिल्का लेक. तो चिल्का में ऐसा हो सकता है, पुलिकैट में हो सकता है. तो जो वहां के रहेंगे वहां पर चीजें चेंज होंगी कि नहीं? तो जो कोस्टल फ्लडिंग होती है, डोंट जस्ट थिंक दैट इट इज अ साइक्लोन, इट इज आल्सो टू डू विद द टोपोग्राफी ऑफ दैट रीजन. डू वी गेट दैट? और फ्लैश फ्लड्स का मैंने क्या बताया? उस एरिया में हेवी रेन, हेवी कंसंट्रेटेड रेन, सिटीज आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जैसे इन्होंने कहा कि सर वो जो है ड्रेनेज सिस्टम को साफ नहीं रखते. साफ भी रख दोगे तो क्या होगा? ओवर कैपेसिटी. ओवर कैपेसिटी. आप ही के घर में डू यू हैव वॉश बेसिन? वॉश बेसिन में नॉर्मल टैप चल रही हो तो पानी जाता जाएगा. अगर आप उसमें पूरा बकेट उंडेल दीजिए, विल द वॉश बेसिन गेट फ्लडेड और नॉट? बिकॉज उसकी कैपेसिटी के. सो cities have turned into such wash basins where such heavy rain comes, and those are termed, उसके लिए टेक्निकल टर्म मैंने आपको क्या दिया? फ्लैश फ्लड्स. डू वी गेट दैट? सो दैट्स योर फ्लैश फ्लड. कैसे इसको डील करना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको फ्लड जोनेशन बताया होगा. राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग वाला जो वो है, फ्लड प्लेन ये होना चाहिए इसमें ऊपर के जोन में, एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट लैंड यूज चेंज दैट इज देयर. एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि जो हमारा पहले बाढ़ नियंत्रण था, फ्लड कंट्रोल हैज टर्न्ड इनटू फ्लड मैनेजमेंट. सो फ्लड कंट्रोल वाज, फ्लड को रोक लेंगे, रोक नहीं सकते हैं, फ्लड है, आएगा ही आएगा. वी नीड टू अडेप्ट टू दैट. आई एम श्योर वो भी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में बता दिया गया. ठीक है, मेरी तरफ से मैंने आपको फ्लड के टाइप्स बता दिए. टाइप से आपका रीजन हो जाएगा. एक लास्ट थिंग, कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, ये मेरी तरफ से. क्विकली थिंक ऑफ सम कॉजेज दैट यू कैन थिंक ऑफ, फिर मैं आपको कॉजेज बता देता हूं what I would want you to include. Causes of floods in India. I want at least 5 causes. Brainstorm. Causes of floods in India.
Just looking at 5 causes. इतना brainstorming, if you are able to generate 5, I am happy with it. बाकी मैं दे दूंगा, don't worry. Quickly causes. भरत चैट ऑन कर देना यार, कोई डाउट होगा तो विल सी दैट ऑल्सो. Causes, if you are not able to look at that, you can make it natural causes, physical or natural causes, anthropogenic और मैन मेड कॉजेस. जो भी मैंने आपसे बात किया ये आपके मीन्स में भी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास से उसको कनेक्ट कर लेना. ठीक है. ज्ञानेश्वर हैज रिटन गुड पॉइंट्स, परफेक्टली ओके. किशोर इज सेइंग से ज्योग्राफी PAYQ सॉल्व हो रहे हैं, वेरी गुड, ही इज फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट. ओके, परफेक्ट. सो पहला, नाउ दैट यू हैव गिवन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इफ आई राइट समथिंग, if I write a point which is not there, so आप उस point को include कर लीजिएगा, and if you already have it, continue with it. Relief and topography of the region. True or not? अभी हमने कहा डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेस्ड, लो लाइंग एरिया. कहने से एक बे भी हो सकता है, बे विद नैरो इनलेट आउटलेट पॉसिबल. तो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजंस जो आप लिख रहे हैं वो भी सही लिख रहे हैं. आई एम टोटली विद यू ऑन दैट. यस. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल मेकअप. टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक एंड इट्स परमिएबिलिटी. टाइप ऑफ रॉक एंड इट्स परमिएबिलिटी. इफ द रॉक इज permeable, so the water will go inside, seepage will happen. If the rock is not permeable, तो वहीं पर रुकेगा या नहीं रुकेगा? यस. अगर रॉक लाइमस्टोन का बना है, लाइमस्टोन तो पानी में घुल जाता है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है. बट अगर ग्रेनाइट है सो वो अटक जाएगा. यस. कैन आई से सॉइल टाइप? जिसको समझ नहीं आया मैं लिख देता हूं. सैंडी वर्सेस क्ले. सैंड पे पानी डालेंगे क्या होगा? नीचे चला जाएगा. क्ले स्टिकी. यस. ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया. ब्लैक सॉइल में ज्यादा इरिगेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर लॉगिंग. हर्ड ऑफ दैट? यू हर्ड ऑफ वाटर लॉगिंग हैपनिंग इन द क्ले स्टिकी सॉइल. तो वहां ज्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ट्रू. सैंडी सॉइल मैंने सुना जैसलमेर में भी बाढ़ आ जाती है. हाउ इज इट पॉसिबल? राजस्थान में फ्लड इन राजस्थान, हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि सर क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट, आपका पानी गिर रहा है, नीचे रेत है, गिरो, क्या टेंशन है? ज्यादा कर दो, कम कर दो. ट्रू और नॉट? राजस्थान में तो फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए, सैंडी सॉइल. आई एम गिविंग यू व्हाटएवर आई एम सेइंग, उसका कुछ एक्सेप्शन भी तो आना चाहिए. सो अगर राजस्थान में फ्लड आ गया एंड somebody asked and you say सचिन सर ने तो ये पढ़ाया, then you know the whole logic goes for a toss. So everyone, राजस्थान में
राजस्थान में अगर अगर फ्लड आया, that will be only under special circumstance, and that circumstance is the formation of a salt pan. What is a salt pan? सरफेस के नीचे, सैंडी सरफेस के नीचे सॉल्ट का अक्यूमुलेशन हो जाना. देयर इज अ हार्ड लेयर ऑफ सॉल्ट बीनीथ द सैंडी सरफेस. सर वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट राइज करते हैं. अभी आपको in the coming classes I'll be talking about soils of India. There I'll tell you how desert soil and how the process of salt pan formation happens. So it is a rare event. जब होगा वो because of salt pan होगा. ठीक है, I'll tell you when I'm doing soils of India. That's one thing. एक और चीज है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4th रिवर चैनल कंस्ट्रेंट लाइक ब्रह्मपुत्र असम बेसिन. वो बेसिन ही लिमिटेड है, पानी ज्यादा हो जाता है. ट्रू और नॉट? रिवर चैनल कंस्ट्रेंट. Can I also include shifting of rivers in this? चैनल ऐसे जा रहा है, या तो वो लिमिटेड है या फिर वो शिफ्टिंग है. इज इट पॉसिबल और नॉट? 4 specific geographical reasons I asked you to think about that. That's there. अब ऊपर से सप्लाई की हमने बात नहीं की. 5th वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई is meteorological cause. साइक्लोन आ सकता है, storms and cyclones, cloud burst can happen. Possible? Meteorological cause. हाँ तो क्लाउड बर्स्ट हो गया, वो लेक का ही तो है, लेक ओवरफ्लो हो गया. ग्लॉफ मीन्स ग्लेशिएटेड लेक ओवरफ्लो. Glaciated lake overflow. Everyone, you have also written your points. I have also written my points. Have I put them under headings? Better है कि नहीं? Yes. अगर मैं इसके एक कॉज को 6th में ओशियानिक, can I put storm surge plus tidal wave? टाइडल वेव से कभी कभी बाढ़ आ जाता है, और एक तो आपने खास सुना है, ये क्या है? सुनामी. ओशियानिक कोस्टल फ्लड. आर ऑल दीज नेचुरल थिंग्स और नॉट? आर ऑल दीज नेचुरल थिंग्स और नॉट? व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर अबाउट द फ्लडिंग इन द बे ही इज लिविंग, ही सेड उस पर भी डिपेंड करेगा हाई टाइड है लो टाइड है. इमेजिन इफ इट इज अ हाई टाइड ऑल्सो एंड साइक्लोन ऑल्सो इम्पैक्ट्स द सेम टाइम. हाई टाइड ने पानी बढ़ाया हुआ है और साथ में बे में और पानी आएगा. विल द फ्लड बी मोर और नॉट? दैट ऑल्सो देयर. सो वी हैव रिटन दैट. सो दिस इज हाउ वी organize our ideas. If we just write randomly, then we don't get much marks. If we are doing this, have we covered all the aspects? Land की भी बात कर दी, इधर meteorological बात भी हो गया और oceanic भी and regions भी हो गए. इंडिया में सब आता है. Yes. अब हम आ गए anthropogenic. इसने क्या किया है? अर्बनाइजेशन. इसको मैं क्या कहूंगा? कॉन्क्रीटाइजेशन. सो जो लोग कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन, इससे क्या होता है? द वाटर इज नॉट एबल टू परकोलेट डाउन, सरफेस पर ही रहेगा. उससे क्या होगा? फ्लैश फ्लड्स आते हैं, अर्बन फ्लैश फ्लड्स. Land use change. I am using technical vocabulary. This will get you more marks. Land use change में हम क्या कर रहे हैं? Chopping of forest. Forest is a use of land
we are removing forest or replacing forest with agricultural farms or cities. Yes or no? So can I say replacing forest by agricultural land or human settlement? घर बना रहे, शहर बना रहे, गांव बना रहे. So deforestation, is that also killing things or not? Yes. और कभी कभी फ्लड आ नहीं रहा था, हम चले गए फ्लड में मरने के लिए. रिवर फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट, रिवर बेड एनक्रोचमेंट. रिमेंबर खादर एंड बांगर. तो रिवर तो फ्लड करेगी करेगी. अब आप जाके रिवर के ही किनारे ही उस जमीन को लेकर उसको यूज करने लगते हैं, बाद में बोलते बाढ़ आ गई मेरा सब डूब गया. वहां तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं. So I remember one of my students, he is an IAS officer in Himachal Pradesh. So you know during monsoons यहाँ पे हिमाचल में बहुत बुरी बाढ़ आती है. तो I was just talking to him that कैसा था. He says very hectic and all those things. Then he says sir सबको मुआवजा भी देना होता है because of floods, people who have lost their land and all those things. So I have to give them relief and rehabilitation. That's a big process. उनको safely ले जाना है, कहीं पे रखना है, and then when it comes to providing them some monetary this thing compensation, he says the issue is whether the person was encroaching upon the river. वो तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था, उसका डूब गया तो उसको नहीं देना है. But if you had genuinely, you were in the areas which are allowed by the government to live, only that fellow will be there. So जो लोग बहुत गरीब हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि सर मेरा तो सब चला गया, देख लो, दिख तो मुझे भी रहा है. But he was living where? Illegal encroachment of that. गवर्नमेंट ने पहले तो इलीगल एनक्रोचमेंट रोकना था, रोक नहीं पाया बिकॉज आबादी बहुत ज्यादा है. अब रोकना नहीं है तो उसके बाद उसको कॉम्पनसेशन भी देना होगा. गवर्नमेंट से सॉरी वी आर नॉट गिविंग यू ऑन दैट. डू वी गेट दैट? सो दैट्स ऑल्सो देयर. सो अर्बनाइजेशन से कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ, दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज लैंड यूज चेंज, ये हम कर रहे हैं. रिवर बेड एनक्रोचमेंट हमने ओशन में भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो वी आर डूइंग दैट. ओशियानिक एरियाज में भी वहां पे सैंड माइनिंग हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स. और एक और चीज होती है, बड़े मन से डैम बनाया था, अब बचो. डैम्स एंड कनाल्स. कनाल वहां बाढ़ लेके गई है जहां कभी बाढ़ ही नहीं आती थी, क्योंकि वो तो रिवर के पास ही नहीं थे कभी. अब रिवर आ गई आपके पास. द रिवर सेज हेलो, आई एम इन फ्लड नाउ. डू वी गेट दैट? So that's what we are talking about. So these are the flood. मैंने आपको 5 बोले थे, मैंने कितने दिए? 10 दे दिए मैंने आपको. Is it okay? Floods in India, droughts in India, ये हमने बात की है. Both prelims and mains के लिए इसका एक सेंस भी बनता है. Unfortunately the word drought has been removed. सुंदर शब्द नहीं था, वो हमारे साथ नहीं जा रहा था, तो इसलिए हमने हटा दिया. विदेशियों की साजिश लगी मुझे भी, तो हट जानी चाहिए. ठीक है. So with this nice interesting note, festive greetings to all of you wherever you are. आप सबको आपके परिवार के साथ happy Holi. Celebrate the festival of colors with a lot of color and joy in your life. And if you are taking a break, दिल से break लो, मजे से take a break and then come back. Recharge yourself. I'll see you on Monday. For the optional students, I have kept a class for you on Saturday and Sunday online वालों के लिए. So I'll be meeting you. यहाँ पर भी जो लोग हैं, मुझे पता है होली के रंग में आप बाहर नहीं आना चाहते हो, ऑनलाइन तो आ ही सकते हो. सो ऑप्शनल हिंदी एंड इंग्लिश, आई विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे बिकॉज ऑफ माय फादर्स सर्जरी. आई हैव मिस्ड सम क्लासेस, सो आई वांट टू कॉम्पेंसेट दैट. थैंक यू. हैव अ ग्रेट फेस्टिवल. हैप्पी होली. जय हिंद.